So, good morning, everyone. In this lecture, we are going to discuss the theory of chapter number 9, that is a rational number. So, we are going to start with the natural number. So, very first number system is natural number. In a natural number, numbers are 1, 2, 3, 4, up to infinite are included. After a natural number, there is another number of set, that is whole number. In whole number, 0 is included. 0, 1, 2, 3, 4, up to infinite. Those numbers are a set of a whole number. Next is a integer number. इंटीजर नंबर के अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर जीरो एंड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to infinite. Right? Those number are negative number. Those number are positive number, and 0 is also included. So all negative number, 0 and all positive number are included in the integer number. Next set is a rational number. So we are going to discuss about the definition of rational number. So let me write the definition of rational number. The number which can be defined by the number which can be defined by in the form of p by q are the rational number. Where p and q are integer number and q does not equal to 0. Right, this is the definition of rational number. Now let's see the example of rational number. 3 by 2 is a rational number, -9 by 14 rational number, 0 is also a rational number, -2 rational number, 4 by 16 rational number, -99 by 87 also rational number. Those are the example of rational number. This is called the positive rational number, negative rational number, positive rational number, and negative rational number. This is negative rational number and this is 0. Right? Those all are the rational number. Now, next theory will be numerator and denominator. We all know about the numerator and denominator, right? So, second theory is about the numerator and a denominator. So rational number implies can be defined in the form of p by q, right? So p is a numerator, we all know, whereas q is known as the denominator, right? Next theory is a positive rational number and negative rational number. We have discussed already. This is positive rational number, negative rational number, positive rational number, and negative rational, right? So theory number 3 is positive rational number and negative rational number. Positive rational number and negative rational number.
So let's see the example of positive rational number. Positive rational numbers are 3 by 2, 6 by 19, 32 by 94, minus 32 by minus 4 is also a positive rational number because minus minus will be cut, right? So positive rational number will be there. 11 upon 96. This is also a positive rational number. Now let's discuss the negative rational number. In a negative rational number, sign of numerator or a denominator will be negative, right? Either numerator or denominator will be negative. So let's write the example of a negative rational number. Minus 3 by 2, negative rational number. 6 upon minus 90, also negative. Minus 32 upon 94, negative rational number. Minus 32 by 4, negative rational number. 11 upon 96, minus 96 is also a negative rational number. Now coming to the next theory, that is a equivalent rational number. Theory number 4 will be equivalent rational number. Equivalent rational number. Now let us separate word equivalent. Equivalent means equal, numbers means number. So meaning of equivalent rational number is a equal rational number. ठीक है, जब हमको एग्जाम में पूछेंगे फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2 by 3, 4 by 6, 8 by 7, तब हम क्या करेंगे? लेट्स सी. Let me take an example. Find the equivalent rational number of 2 by 3. Find the equivalent rational number of 2 by 3. ठीक है, जब जब हमको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इस टाइप के कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2 by 3, 4 by 6, 7 by 8, तब हमको क्या करना है? 2 by 3, राइट? 2 by 3 को क्या करेंगे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से डिवाइड कर दो. मान लो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यहाँ पर हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 2 by 3. Now let's multiply by 5. You can take any number. Now 2 by 3 multiply and divide by 7. ऐसा करने से हमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. नाउ मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, you will get 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 5s are 10, 5 3s are 15, 7 2s are 14, 3 7s are 21, राइट? तो हमारा आंसर आ चुका है 4 by 6, 10 by 15 एंड 14 by 21. सारे के सारे क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. किसके? 2 by 3 के. नाउ लेट्स राइट द आंसर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर of 2 by 3 are 4 upon 6, 10 by 15 and 14 by 21. Now let's take another example. Example number 2. Consider find the rational number of find the equivalent rational number. Find the equivalent
rational number of, let's take a 3 by 7. So we have to apply the same procedure, 3 by 7, 3 by 7, and 3 by 7. Now multiply and divide by the same number. You can take any number, right? I'm going to multiply by 3 and divide by 3. Going to multiply by 5 and divide by 5. Going to multiply by 10 and divide by 10. So what will be the answer? 3 3s are 9, 7 3s are 20, 1, 5 3s are 15, 7 5s are 35, and 3 times are 30, 7 times are 70. So those are the equivalent rational number of 3 by 7. Now let's write the answer. Equivalent rational number of 3 by 7 are 9 by 21, 15 by 35, and 30 by 70. So these are the theory of equivalent rational number. Now next theory is a rational number on a number line. Rational number on number line. Now let's take example number 1. Mark 3 by 4 on a number line. Right? तो जो 3/4 है वो नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा उसको हमको मार्क करना है। अब अभी हमको पता नहीं है कि 3/4 है, 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा, 2 से 3 के बीच में आएगा। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 3/4 का डिवीजन करके डिवीजन चेक करते हैं कि जो 3/4 एक्चुअल में 2 और 3 के बीच में आता है, कि 5 और 6 के बीच में आता है, कि 10 और 11 के बीच में आता है, या तो 0 और 1 के बीच में आता है। तो 3/4 हम चेक करते हैं तो 4 0 जा 0 हो जाएगा, बचा 3 0, 7 जा 28, बचा 2 0, 5 जा 20। तो जो डिवीजन है वो आ चुका है 0.75, राइट। तो 0.75 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो जो ये वाला नंबर है कौन से नंबर के बीच में आ रखा है, 0 और 1 के बीच में आ रखा है, ठीक है। इतना यहाँ से हमको पता चल चुका। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम सीखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। Now let's draw the number line first. This is our 0, this is 1, and this is -1. Now denominator is 4, so we have to divide 0 to 1 into 4 equal parts. I am repeating again, denominator is 4, so we have to divide 0 to 1 into 4 equal parts. That is first, second, third, and fourth. So first number will be 1/4, second number will be 2/4, third number will be 3/4, and fourth number will be 4/4. 4 will be cut and answer will be 1. So we have to mark a 3/4. Where is 3/4? This is 3/4. Right. Now let's take another example. Example number 2. Consider mark a 2/3 on a number line. Right. So we have to mark a 2/3 on a number line. First of all, सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा 2/3 नंबर जो है किसके बीच में आता है, 4 5 के बीच में आता है, 11 10 के बीच में आता है, कहाँ पर आता है हमको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए करेंगे हम सिंपल सा डिवाइड, 2/3, 3 0 जा 0, बचा 2.0,
सिक्स जा 18, 2 बचा 0, 6 जा, यानी कि आंसर आ चुका हमारा 0.66, लाइज बिटवीन मोर देन 0 लेस देन 1। तो 0.66 जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में आंसर आता है। तो इतना हमको पता चल चुका कि 2/3 नंबर 0 से लेके 1 के बीच में आता है। ठीक है, अब हम नंबर एंटर करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने की ट्राई करें। तो सेंटर में ले लेते 0, इससे ले लेते 1, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा -1। नाउ denominator is 3, denominator is 3, so divide 0 to 1 into 3 equal parts। आगे वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 4 था, तो वहां पर हमने 0 से लेके 1 को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करा था। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमको 3 दे रखा है, राइट। सो 0 से लेके 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा 1, 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 2, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3। डिनोमिनेटर 3 दे रखा है, तो हर एक नंबर के नीचे 3 लिखना कंपलसरी है। ये नंबर हो जाएगा 2 के बाद आएगा 3 अपॉन 3, 3 3 कट होकर 1 आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा। हमको मार्क करना था 2/3, सो वायर इज 2/3, here is 2/3। Now let's take a last example of a number line. Consider 5/7. Mark 5/7 on a number line. So divide 5/7. 7 zeros are 0, 5.0, 7 sevens are 49, 1 0, 7 ones are 7 3। आंसर आ चुका है हमारा 0.71, लाइज बिटवीन 1 एंड 0। तो 0.71 है, तो 0 और 1 के बीच में आता है, इतना हमको पता चल चुका, राइट। Now let's do the number line. Let me mark 0 first, then after 1, and then after -1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 दे रखा है, तो 0 से लेके 1 है, उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 दे रखा है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 को कितने इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, 0 के बाद पहला नंबर आता है 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 पे 1 ऑलरेडी लिख रखा। अब डिनोमिनेटर 7 था, हर एक नंबर के नीचे 7 लिखना कंपलसरी है, तो हमारा नंबर बन जाएगा 5/7, 6/7, और 6 के बाद आएगा 7, 7/7 हो जाएगा 1, तो 1 तो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा। हमको मार्क करना था 5/7, ठीक है। तो कहाँ पे दिख रहा है 5/7, दिस इज आर 5/7, राइट। तो ये थियरी थी हमारी नंबर लाइन। नाउ नेक्स्ट थियरी आती है ऑपरेशन करना, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। रेशनल नंबर और नंबर लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट थियरी दे रखे हमको रेशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंपल सा डिवीजन करना होता है। मान लो क्वेश्चन दे रखा हमको, कन्वर्ट 5/30 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमको तब तक डिवीजन करना है जब तक फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 1 जा 5, और नीचे में लिख देता हूँ
5 6 are 30, सो 5 5 विल बी कट, आंसर आ चुका है 1/6। अब आगे 1 और 6 कट नहीं हो सकता, राइट। सो 5/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है 1/6। तो जब जब इस टाइप का क्वेश्चन आए स्टैंडर्ड फॉर्म, तब तक हमको क्या करना है, तब तक डिवीजन करना है जब तक फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो जाए। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो क्वेश्चन पूछ रखा है कन्वर्ट 10/2 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा 10/2। तो 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं हम 5 2 जा, 2 को कन्वर्ट कर सकते हैं हम 2 1 जा, सॉरी 2 1 जा, सो 2 2 कट हो गया, आंसर आ चुका है 5/1। नाउ लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्ट 104 divided by 4 in the standard form. So standard form will be 104 divided by 4। 104 का आधा हो जाएगा 52, इसका आधा हो जाएगा 2। नेक्स्ट 2 का आधा हो जाएगा 1, 52 का आधा हो जाएगा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, तो आंसर आ चुका 26/1। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 104/4। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 3/15 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी 3/15, राइट। सो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 3 विल बी कट, सो आंसर आ चुका है हमारा 3/5। गॉट इट। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3/15। नेक्स्ट थियरी दे रखी है हमको, कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट थियरी दे रखी है हमको कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर हमको दो नंबर का कंपैरिजन करना। मान लो हमको नेचुरल नंबर दिया होता कि भाई 3 और 15 में से कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है, तो यहाँ पर हमको पता है कि 15 बड़ा हो जाएगा और 3 छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हमको ऐसा कोई बोल देते 2/15 और 3/17, कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो और एलसीएम भी ले सकते हो। तो अब एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। मान लो क्वेश्चन दे रखा है हमको, कन्वर्ट सॉरी कंपेयर 2/5 एंड 3/7, ठीक है। इसमें से कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा हमको दिखाना है। अभी तो हमको पता नहीं चल रहा कि 2/5 बड़ा है कि 3/7 बड़ा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2/5 और 3/7, राइट। अब इसको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका डिनोमिनेटर था 7, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो। इसका न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था 5, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो। 2 7 जा 14, 5 7 जा 35। नेक्स्ट नंबर 5 3 जा 15, 7 5 जा 35। अब आप लोग देख सकते हो डिनोमिनेटर जो है 35 आ रखा है, राइट। तो यहाँ से हमको पता चल चुका है कि ऊपर एक साइड 14 नंबर है, दूसरी साइड 15 नंबर है। तो जो 15 नंबर है वो बड़ा हो जाएगा 14 नंबर से, राइट। तो ये थी कंपेरिजन ऑफ 2/5 एंड 3/7, यानी कि रेशनल नंबर की कंपेरिजन कैसे करी जाती है वो। नाउ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमको क्वेश्चन दे रखा है कंपेयर 3/7 एंड 2/9। अभी हमको पता नहीं कि 3/7 नंबर बड़ा है कि 2/9 नंबर बड़ा।
इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/7 2/9 लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर डिनोमिनेटर था 9, सो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। इसका डिनोमिनेटर था 7, सो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो। अब इसको सॉल्व करके हम लिख देते हैं, 9 3 जा 27, 7 9 हो जाएगा 63, यहाँ पर 7 2 जा 14, 7 9 हो जाएगा 63, राइट। अब कंपेयर कर लो, 27 बड़ा नंबर हो जाएगा, 14 छोटा नंबर हो जाएगा, राइट। सो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/9, राइट। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस टाइप क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट थियरी इज ऑपरेशन ऑन अ नंबर लाइन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसके अंदर हमको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन वो वाली चीजें पढ़नी है, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर रखी है। ठीक है, एडिशन कैसे करना, सब्ट्रैक्शन कर कैसे करना, मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा था। ये वाली चीज तुमको अच्छे से आती है। तो सबसे पहले एडिशन सीखते, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखते। सिर्फ साइन का चेंज आएगा भाई, कहीं पर भी चेंज नहीं आएगा। ऑपरेशन ऑन अ रेशनल नंबर, राइट। तो सबसे पहले हम सीखते कि रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करा जाता है। मान लो 2/3 प्लस 6/11 करना, तो इसके लिए हमने बटरफ्लाई मेथड सीख रखी है, राइट। 2 × 11 हो जाएगा 22, प्लस 3 × 6 हो जाएगा 18, और 3 × 11 हो जाएगा 33। ठीक है, यहाँ पर बटरफ्लाई बन चुका है, देख सकते हो लोग। अब सिंपल से एडिशन कर दो, आंसर लिख दो, 22 + 8 30 + 10 40 डिवाइड बाई 33। ये हो जाएगा एडिशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का। मान लो हमको पूछ रखा है 5/9 प्लस 6/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेना तो वो कर दो, अदरवाइज एलसीएम नहीं लेना तो डिनोमिनेटर चेंज कर देते, राइट। मान लो हमको दे रखा है 5/9 प्लस 6/5। तो 5 5 जा, बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करनी है हमको यहाँ पे। 5 5 हो जाएगा 25, प्लस 9 6 जा, ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 54 अपॉन 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45। 5 + 4 9, 5 + 2 7, और नीचे 45 तो हमारा बचा ही। तो ये था एडिशन, जो ऑलरेडी हमको आता ही है। नेक्स्ट हमको दे रखा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यही दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करने की ट्राई करते हैं हम। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सब्ट्रैक्शन का, 2/3 माइनस 6/11 दे रखा है, राइट। तो सेम मेथड अप्लाई करनी है, बटरफ्लाई मेथड। 2 × 11 22 माइनस 6 3 जा, दैट इज 18 अपॉन 11 3 जा 33 हो जाएगा। 22 में से 18 का बच्चा 4/33। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर। नाउ लेट्स टेक अनदर नंबर 6/5 माइनस 5/9। सो बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करने अगेन, 9 6 हो जाएगा 54, माइनस 5 5 हो जाएगा 25, और 9 5 हो जाएगा 45। तो 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, नीचे आ चुका 45। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। इसके अंदर भी बटरफ्लाई मेथड ही यूज करनी थी। एडिशन है तो फिर बटरफ्लाई लगेगी, सब्ट्रैक्शन है तो फिर बटरफ्लाई मेथड ही लगेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, राइट।
So now let's take an example of the multiplication. 2 by 3 multiply 11 upon 40. नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 2 11 जा 22, 3 4 जा 112। इसको कट करना है तो फर्दर कट कर सकते हो। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 60। यहाँ से सीधा कट करना है 220 जा तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छी लगे वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं 5/7 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है एक भी नंबर कट हो रहा है क्या। कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है तो 5 3 जा कर देंगे 15, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ 7 2 जा 14। नाउ लेट्स टेक अ लास्ट एग्जांपल 11/2 मल्टीप्लाई 5/7। सो कट हो रहा तो कट कर दो, अदरवाइज ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 जा 55 और 7 2 जा 14। ठीक है, ये था multiplication. Now let's understand the last theory of this chapter, that is a division. मान लो हमको क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइड 2/5 एंड 7/3। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, 2/5 एज इट इज रहेगा, डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन 7/3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3/7। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन का सम बन चुका। कट हो रहा है तो कट करो, अदरवाइज क्या कर दो ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 5 7 जा 35। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका। नाउ लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल 2/9 डिवाइड बाई 11/6। ठीक है, 2/9 रहेगा एज इट इज, डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट जो नंबर उसको कर देंगे रेसिप्रोकल 11। ठीक है, तो 3 2 जा कट हो जाएगा, 3 3 जा कट हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर बच जाए 2 × 2 3 × 11। 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 11 जा हो जाएगा 33। नाउ लेट्स टेक अ लास्ट एग्जांपल 5/7 डिवाइड बाय 2/9। 5/7 as it is, division become multiplication, 2/9 become 9/2। 5 9 जा 45, 7 2 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पर होती है हमारी चैप्टर नंबर रेशनल नंबर की थियरी कंप्लीट। सो थैंक यू एवरीवन।